Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am faculty member. My name is Ali Aurangzeb. I am the faculty member of Computer Science and IT BBSL Leari. The subject name is Introduction to Database. This subject is basically consists on the 3 plus 1 credit hours, and the course contents are given and the reference material or reference books are also given. These are the learning outcomes and the chapters we have covered. Before the COVID-19, we have covered the introduction to database, whereas traditional file-based approach, the limitations, database approach, DBMS, database application program. Also, we have covered the database environment, where we have already discussed the 2-tier and 3-tier architectures, the schemas, and the mapping, logical data independence. Along with, we have also done the data languages, DDL, DML, and data control languages. We have covered the generation of the languages, third generation of languages, and the fourth generation of languages. And also we have developed data models as well as a conceptual modeling. And you will be able to develop the one of the ER models. And जैसे कि हमने ER मॉडल बनाना भी सीखा था, और ER मॉडल में आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है डिज़ाइन किए हैं, और along with we have covered the history of the relational models, relational data structures, integrity constraints, entity integrity. Also we have covered the relational algebra and then SQL statements. We have covered these contents, the sample queries of the SQL statements, as well as we have covered the SQL tutorial. Also we have covered the joining, and we have performed the lab up to the joinings. And finally we have covered the database analysis and the design, database system development lifecycle, information system lifecycle. We have covered this chapter. This is the assignment summary. Today we will discuss on the fact finding techniques. We will evaluate or elaborate the different fact and finding techniques, how we can capture these type of the techniques, how we can collect the different type of the information, source of information. So we will cover when are fact finding techniques used, what facts are collected, and the fact finding techniques in which number one is examining documentations, interviewing, observing, research, and questionnaire. And there is a lot of the examples are available and the case studies are available, which I will assign you in assignment. This is the chapter objective. Fact findings. Fact finding is one of the crucial or the critical phase when we are going to develop a software development life cycle. जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डेवलप करते हैं और उसके दौरान you have to follow the stages of the software development life cycles: database planning, system definition, requirement collection, and analysis stages. So at that stages, the database जो डेवलपर होता है उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं. For what purpose? Definitely to build the database.
अगर आप डेटाबेस बना रहे हैं तो आपको डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करते हुए और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ क्लाइंट माइट बी रिक्वेस्ट टू यू कि भाई ये हमें सॉफ्टवेयर ये डेटाबेस हमें चाहिए, ये डेवलप करके दें, तो it is a fundamental requirement of the database development. You have to provide the all the information related to the database. आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. सो इसलिए जो डेटाबेस डेवलपर होता है, he is the one of the technical person. You want to know all the fact and findings on the basis of SDLC, on the basis of database development life cycle. You want to collect all the information. क्या जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, डेटाबेस प्रोजेक्ट बनाते हैं, और अक्सर मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, प्रोजेक्ट हमेशा वो होता है जो टेम्पररी हो. हम कभी भी प्रोजेक्ट को जो है लॉन्ग टर्म या हम प्रोजेक्ट को जो है परमानेंट नहीं बनाते. तो क्या कोई डेवलपर अगर कोई रिक्वायरमेंट उसको चाहिए, कलेक्ट कर रहा है और वो फैक्ट एंड फाइंडिंग कलेक्ट कर रहा है, तो क्या how he must spend the time and the efforts. मतलब क्या वो पूरा टाइम ही इसके ऊपर खर्च करेगा? नो. अगर वो सारा टाइम ही उसके ऊपर स्पेंड करेगा तो बाकी क्या होगा? सो he should be avoid to paralysis by analysis. It is one of the time consuming. Paralysis by analysis is one of the time consuming. एंड जब आप टाइम कंज्यूम करते हैं तो बेसिकली आपकी सारी एफर्ट जो है बेसलेस हो जाती है. इफ यू वांट टू अप्लाई द एफर्ट, आपको पता होगा कि हमने बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की थी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. व्हेन यू हैव डेवलप्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, हर एक्टिविटीज जो हम कर रहे थे वहां पे एक्टिविटी ए बी सी, और हर एक्टिविटी को हम ड्यूरेशन अप्लाई कर रहे थे कि इस एक्टिविटी का कितना ड्यूरेशन होगा. एंड फाइनली यू वांट टू फाइंड आउट द मिनिमम पाथ. और तो ये टाइम इज इम्पोर्टेंट, एफर्ट इज इम्पोर्टेंट. तो ये पूरा का पूरा जो है टाइम एंड एफर्ट आप बिल्कुल आप फैक्ट एंड फाइंडिंग कलेक्ट करें, इंफॉर्मेशन जितना भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करें, एनालिसिस करें. चाहे आपको जितने भी मेथड अप्लाई करने पड़ रहे हैं, तो यू हैव टू अप्लाई ऑल द टेक्निक्स, बट must be careful regarding the paralysis by analysis. Do not consume your time. अगर हम फैक्ट एंड फाइंडिंग कलेक्ट कर रहे हैं तो वो किस बुनियाद पे करें और कौन कौन से कर रहे हैं. मतलब हम किससे कलेक्ट ये फैक्ट एंड फाइंडिंग कलेक्ट कर रहे होते हैं? ये क्लाइंट प्रोवाइड करता है, कस्टमर प्रोवाइड करता है, बिकॉज ही नीड टू डेवलप द डेटाबेस. जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको डेटाबेस आप डेवलप करके दें. तो माइट बी at every stage they can collect or capture each and every type of information. For example, at the planning database planning stage, अब वो डेटाबेस प्लानिंग की स्टेज पे वो देखते हैं कि सबसे पहले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेटाबेस प्रोजेक्ट के क्या हैं. ये देखा जाता है कि किसी भी डेटाबेस की जो प्लानिंग है उसके मेन गोल क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका मिशन स्टेटमेंट क्या है. क्यों? दे वांट टू अंडरस्टैंड. द डेवलपर जो होता है, जब आप कोई कस्टमर या क्लाइंट कोई भी डेटाबेस प्रोजेक्ट के लिए कहता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप प्लानिंग स्टेज पे जो है आप उस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करें कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. कीप इन योर माइंड, मैं हमेशा कहता हूं कि डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो, चाहे आप एक नया सिस्टम के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई क्लाइंट या कस्टमर जो है नए सिस्टम के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑलरेडी कोई बिल्ट इन है और उसमें कोई प्रॉब्लम है,
you have to follow these life cycle stages. System definitions, सबसे important ये होता है कि you have to describe the major views and then you have to perform the each role of the job. What does it mean? It means that you want to describe the scope of the project, boundaries of the project, boundaries of the database, whatever you want to develop the applications, you have to define completely your systems. And then requirement collection and analysis. आप जितनी भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती हैं तो वो सारी की सारी जो है आप डॉक्यूमेंट फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, चाहे वो यूजर की रिक्वायरमेंट हो चाहे वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो. Or might be you can develop the huge feasibility report. Database design, you are able to design the ER models, you are able to design the conceptual as well as the logical models, and you have to design the number of the schemas which describe the functionality of the architecture of the database. जब तक आप database की designing नहीं करेंगे तब तक it is unable to understand the application design. What does it mean? Basically, in application design, there is a sum of the description of the programs. I mean, user interface किस तरह होगा, or then finally you want to select the functionality or the DBMS recommendations. आप कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर जो है चूज करेंगे, the selection of the DBMS. Prototyping, implementation and data conversion and loading. तो ये जो आपके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि if you want to deploy this type of the applications, then you must have the capability to deploy or the test the software, and then finally if after the testing might be occurs some type of the problems, and you have to provide one of the catalog to the client or the customers with the user manuals. And if you want to evaluate or modify some softwares, so there must be uh, uh, capability of the maintenance कि आप उस प्रोजेक्ट को या उस डेटाबेस को मेंटेन कर सकें. फैक्ट एंड फाइंडिंग टेक्निक्स, मोस्टली जो हम डेटाबेस के अंदर जो फैक्ट एंड फाइंडिंग टेक्निक्स यूज करते हैं वो 5 होती हैं. नंबर 1 इज एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यूइंग, ऑब्जर्विंग द एंटरप्राइज इन ऑपरेशन, रिसर्च एंड क्वेश्चनर. तो हम आते हैं सब नंबर 1 एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंटेशंस. सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी डेटाबेस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पेश आती है. फॉर व्हाट पर्पस? डॉक्यूमेंटेशन कैन हेल्प टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन. जब आप योर एसोसिएट आर linked with the enterprise or the business organizations, अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई भी क्लाइंट आपको कह रहा है कि भाई हमें ये प्रोजेक्ट बनाकर दे दें, हमें ये डेटाबेस बनाकर दे दें, तो इट्स द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस टू डिस्कवर द फैक्ट एंड फाइंडिंग्स थ्रू द examining the documentations. And that document might be related to your current systems, या आप कोई नया सिस्टम बना रहे हैं या कोई पहले से बना हो उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आपको हर चीज डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू एग्जामाइन करनी होगी, जिसके थ्रू माइट बी यू कैन जनरेट द फॉर्म्स, रिपोर्ट एंड फाइल्स. फॉर व्हाट पर्पस? you want to quickly understand the type of the systems, the purpose of the documentation and the use examples of the source of information, and how we can use this type of the sources. Number 1 is describe problem and need for the database. Completely you have to describe the nature of the problem. मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी
आप कोई डेटाबेस बनाते हैं तो आप बगैर सोचे समझे कोई भी डेटाबेस डेवलप नहीं करते जब तक आपके पास कोई नेचर ऑफ द प्रॉब्लम ना हो, जब तक आपके पास कोई सिनेरियो ना हो, जब तक आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट ना हो, जब तक आपके पास कोई कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन, जब तक आपके पास कोई और मॉडल ना हो, जब तक आपके पास कोई प्रोटोटाइप मॉडल ना हो, तो आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, तो हाउ यू कैन फाइंड आउट। बेसिकली जब आपके इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है इन डेटाबेस, यू कैन यूज द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। और डॉक्यूमेंटेशन ईमेल के थ्रू भी होती है, कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग थ्रू भी होती है, कोई कस्टमर क्लाइंट कंप्लेन भी कर सकता है, कोई भी आपको जो है आप यू कैन जनरेट द नंबर ऑफ द रिपोर्ट्स, डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द इंटरप्राइज अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम। तो आप उन अगर किसी भी एंटरप्राइज को कोई किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम है और कोई और दैट प्रॉब्लम मस्ट बी मे बी कोई ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, मिशन स्टेटमेंट है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, यू वांट टू डेवलप द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एज वेल एज शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एंड देन कोई आप जॉब डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई टास्क असाइन कर रहे हैं, एंड डिस्क्राइब द करेंट सिस्टम्स। अगर किसी करंट सिस्टम को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप एक डेवलपर को कैसे समझाएंगे कि ये क्या है सिस्टम, या एक डेवलपर अगर कोई फाइंडिंग्स कलेक्ट कर रहा है क्लाइंट से, तो वो कैसे बताएगा कि क्या क्या मुझे रखना होगा और क्या क्या मुझे डेवलप करना है। तो he might be develop the flow charts, ER model, he can keep the data dictionaries, database design and training manual। जब भी कोई क्लाइंट या कस्टमर अपना डेटाबेस बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उनके साथ हमेशा जो कम्युनिकेशन की जाती है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन की जाती है। आप उनसे रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर रहे होते हैं, और जब भी कोई डेवलपर या प्रोजेक्ट मैनेजर या एग्जीक्यूटिव मैनेजर उनसे बात कर रहा होता है तो डेफिनेटली जो इंटरव्यूइंग करने वाला होता है he must be have the capability of the interviewing and have the good communication skills। आपको पता होगा कि आप लोगों ने 7 C's पढ़ा है। 7 C's के अंदर आपको पता होता है कि हाउ यू हैव, आप जब भी कोई बात करें या किसी से भी कोई, तो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर। इससे क्या होता है कि बेसिकली दे कैन इंक्रीज योर वैल्यूज एंड आल्सो प्रोवाइड द मोटिवेशंस विद द पर्सनालिटीज। जब आप इंटरव्यूज करते हैं तो इंटरव्यूज दो तरह के होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अनस्ट्रक्चर्ड में तो आप पूरा का पूरा जो है जनरल ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड के अंदर आप बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करते हैं, और इंटरव्यूअर जो है वो चाहता है कि मोर एंड मोर एलाबोरेट करे और क्लियरफाई हो, वो एक्सपैंड करता है क्यूरीज को। वो डिपेंड अपॉन दी रेस्पॉन्सेज ऑफ दी इंटरव्यूज के वो किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। और ये इंटरव्यूअर का काम होता है कि हाउ ही कैन वांट टू फाइंड आउट at a depth level and how he want to collect the additional questions or the answers from the client। Observing the enterprise in operations। Observations एक important fact and finding की टेक्निक होती है। आपको पता होता है कि हमारे घर में जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं कि आपके पेरेंट्स या कोई भी जो है वो कहता है कि बेटा ये काम नहीं करना, क्यों वो आपको पता था कि ये काम नहीं करना? यस, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, और वो ऑब्जर्वेशन जो कर रहा होता है वो एक्सपीरियंस के बुनियाद पे कर रहा होता है। जो आप देख रहे होते हैं, जो आप कर रहे होते हैं, जो आप एक्टिविटीज परफॉर्म करके आए हैं। सो सिंपली विथ दिस टेक्निक कि आप
कि जितने भी सीनियर डेवलपर हैं वो हर एक्टिविटीज के साथ इन्वॉल्व होते हैं। दे वांट, वो लर्न कर रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट। तो आप अगर किसी क्लाइंट की कोई क्लाइंट अगर आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई कस्टमर आपको कोई प्रोजेक्ट के लिए आपके साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहा होता है, तो आप वो बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन या कोई भी फैक्ट एंड फाइंडिंग्स जो है आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट आर द मेजर एडवांटेज? अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो उसमें एडवांटेजेस क्या होंगे? Might be allows the validity of the fact and finding to be checked. Observer can see exactly what is being done. जो ऑब्जर्वर है तो उसको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। Observer can also obtain the data describing the physical environment of the task, क्योंकि वो फिजिकली उसकी उनकी अटैचमेंट होती है उन सिस्टम के साथ और वो पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऑब्जर्वर कैन डू वर्क मेजरमेंट, उनको पता होता है कि जो टास्क आपने शुरू किया है वो कब खत्म होगा, या कभी कभी वो प्रेडिक्ट करते हैं। क्योंकि डिसएडवांटेजेस क्या है? पीपल में नोइंगली और अननोइंगली, कभी कभी लोगों को कुछ पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है और करना क्या होता है। अब कभी miss observing task involving different level of difficulty or volume normally experienced during the time period। कभी जो टाइम पीरियड होता है जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उस टाइम पर आपको ऑब्जर्व करना था और आपने नहीं किया, यू हैव मिस्ड द टाइम। जिस टाइम पे जो जरूरत होती है तो उस टाइम पर आप करते नहीं हैं, और जिस टाइम पर करते हैं उस टाइम पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। Some tasks may not always be performed in the manner which they are observed। कभी कभी जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो वो इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं। रिसर्च, रिसर्च भी एक फैक्ट एंड फाइंडिंग टेक्निक्स है, और इट्स वन ऑफ द यूज्ड टू कलेक्ट a lot of the informations। it's one of the systematic methods। रिसर्च एक सिस्टमेटिक मेथड होता है जिसके थ्रू आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन या गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। आता कहाँ से ये गुड सोर्स, और मिलती कहाँ से ये इंफॉर्मेशन? आप जर्नल पे जाते हैं, आप अच्छे रिसर्च पेपर स्टडी करते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, एंड a huge lot of the materials are available on the internet। अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, किसी डेटाबेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको रिसर्च करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मजीद मैं कोई गैप एनालिसिस को फाइंड करूं, मैं गैप फाइंड करूं, मैं कुछ फैक्ट फाइंड करूं कि ये कैसे बेहतर बन सकता है और किस तरह हो सकता है, तो यू हैव टू फोकस ओवर द मैथडोलॉजी ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड आपको किसी भी सिस्टम को स्टडी करने के लिए यू नीड टू लिटरेचर सर्वे, आपको लिटरेचर को स्टडी करना होता है। फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? यू कैन, अगर आप करते हैं रिसर्च तो आपका टाइम बच जाएगा, और आपको ये भी पता होता है कि क्या इस टाइप का प्रॉब्लम कभी किसी ने बनाया है, अगर बनाया है तो फिर उसमें क्या उसमें गैप है। डिसएडवांटेजेस, requires access to appropriate sources of information में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंफॉर्मेशन। अगर आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो आपकी रिसर्च किसी काम की नहीं है। आप अपने तरफ से कुछ भी नहीं कह सकते कि ये चीज है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि ये वाइट कलर है, आप कह रहे हैं ये ब्लैक कलर है, तो ये नहीं है कि मैं अपने तरफ से कह दूं ये वाइट कलर है। हमें इसको प्रूव करना होगा, थ्रू दी बिलीफ देना होगा कि हमें वी हैव टू क्रिएट द वन ऑफ दी हाइपोथेसिस। हमें उसको बताना होगा कि ये जो आप बता रहे हैं
यही है, हमें उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना होगा, एनालिसिस के थ्रू प्रूफ करना होगा। क्वेश्चनरी, ये हम क्वेश्चनरी जो है हम डेवलप करते हैं थ्रू द सर्वेस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आप सर्वे करवाते हैं और सर्वे के ऊपर जो है मल्टीपल, कभी आप देते हैं एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल और समथिंग। जब आप, अगर आप आपको कोई कस्टमर किसी प्रोजेक्ट के लिए कह रहा है, तो अगर आप उनके साथ फेस टू फेस बात नहीं कर सकते तो कम से कम आप उसको जो है एक सर्वे फॉर्म दे देंगे, आप क्या चाहते हैं। Questionnaires are special purpose documents that allows fact to gather from a large number of people। आप बहुत सारे लोगों को बता दें, ये भी एक रिसर्च में भी ये यूज किया जाता है। आप बहुत सारी अगर कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और आप उसके ऊपर एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप एक सर्वे फॉर्म डेवलप करें और उनके थ्रू आप बहुत सारी चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होगा? पीपल कैन कंप्लीट एंड रिटर्न क्वेश्चनर्स at their convenience, little inexpensive way to gather data from large number of people, people more likely to provide the real fact as the responses can be kept confidential, responses can be tabulated and analyzed quickly। बहुत आसान सा तरीका होता है कि आप सर्वे फॉर्म दे दें और वो जो है बहुत सारे जो लोग होते हैं उसको फिल आउट करके और आपको दे देंगे, और ये जो है कॉन्फिडेंशियल होता है। और देन यू कैन अप्लाई दी a lot of the tools are available like the SPSS or languages, statistical tools are available, and then you might be analysis। and disadvantage ये होता है कि कभी कभी आपको नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट जो है वो कभी कम मिलते हैं, और कभी कभी आपको जो सर्वे फॉर्म आप देते हैं जिन लोगों को कि फिल आउट करके दें, वो सारा फिल आउट नहीं करते और इनकम्प्लीट करते हैं। may not provide an opportunity to adopt or reword questions that have been misinterpreted, cannot observe and analyze the respondent body language। आप किसी पर्सन की बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो है वो नहीं कर सकते एनालिसिस। जैसे मैंने कहा कि हम फाइनली जब फैक्ट एंड फाइंडिंग्स कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था डेटाबेस डिजाइनिंग, तो उसके बाद फैक्ट उन डिजाइन के दौरान जो फैक्ट एंड फाइंडिंग्स आप कलेक्ट करते हैं, तो हर प्रोजेक्ट की नेचर डिफरेंट है, हर केस स्टडी की नेचर डिफरेंट है, तो ये सारा डिपेंड करता है आपके केस स्टडी के ऊपर। तो ये केस स्टडी मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेरीज है, कोई प्रीवियस क्वेरीज है, आई एम अवेलेबल। यस। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। थैंक यू वेरी मच। अभी भी कोई सवाल है तो आप पूछें, वरना हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और वो टॉपिक होगा ट्रांजैक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। थैंक यू।